Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I welcome you to the lecture 22 of the Statistics and Probability Theory course. In last class, we concluded our discussion on probability distribution, which is called Poisson distribution, and then we started continuous distributions, and from which we discussed uniform distribution. Poisson distribution was actually basically a limiting case of binary distribution. आपको याद होगा कि हमने basically we started with binomial distribution और n को हमने जब very large n tends to infinity उसके ऊपर लिमिट्स अप्लाई की, तो whatever was the form of that probability distribution, that was called Poisson distribution. Poisson distribution की जो main characteristic थी वो that was कि हम किसी भी event को in a given interval of time or region में देखते हैं. यानी किसी भी रूम में एक मिनट में या एक घंटे में कितने लोग आते हैं, एंटर होते हैं या बाहर निकलते हैं, या नेट people present in a particular room in for a given interval of time, which can be an hour or so. Poisson distribution जो है वो इस किस्म के जो problems हैं उनको हम उससे handle करते हैं. We saw the expression जो था that was something like e to the negative mu or mu to the x divided by x factorial type इसका expression था Poisson distribution का, which was actually difficult to evaluate. Where mu जो था that was mean of the distribution और इसको हम NP से calculate कर लेते थे. So this sometimes becomes cumbersome to calculate or evaluate. तो हमने basically क्या देखा कि we actually had जो commonly used mu की values थी उनके लिए, and for certain values of x like 1 से 20 तक we had these tables जिनकी मदद से कि we could evaluate the sum. Basically इसमें एक चीज़ की वैल्यू हमें नहीं मिलती थी. We had a summation of all these from x is equal to 0 to r. तो r की वैल्यू जो है वहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 7 was given. तो उस टेबल की मदद से we could evaluate the probabilities even of a single value of r, यानी 20, 15, 16 के लिए, या we could do it for the whole range. यानी what is the probability of being this event between 3 and 7. तो हम क्या करते थे कि 7 वाला सम जो था उसको और उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते थे 2 वाला सम, ताकि 3 और 7 बोथ इंक्लूड हो जाएं और बाकी के जो हैं वो वैल्यूज एक्सक्लूड हो जाएं. तो वट एवर इज लेफ्ट विल बी फ्रॉम 3 to 7 उनका सम होगा. तो दैट वी कुड कैलकुलेट फ्रॉम दिस Poisson डिस्ट्रीब्यूशन टेबल्स. सिमिलरली अगर हमें किसी एक वैल्यू को इवेल्युएट करना होता था तो हम दो कंसेक्टिव, यानी अगर हमने फॉर एग्जांपल 6 को कैलकुलेट करना है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस नंबर के म्यू जो है दैट इज फॉर एग्जांपल 1 है और जो x है दैट इज 6. तो हम इसको टेबल से फॉर समेशन 0 से 6 तक वैल्यू देखते थे, माइनस इससे पीछे वाली समेशन 0 से 5 वाली. अब इन दोनों वैल्यूज का जो डिफरेंस है दैट वाज एक्चुअली द वैल्यू ऑफ ओनली 6. तो इस तरह से वी वर एबल टू कैलकुलेट दीज probabilities के
उस इवेंट के एग्जैक्टली दैट होने के या इन अ सर्टेन रेंज होने के प्रोबेबिलिटी क्या है, दैट वाज व्हाट वी कुड डू यूजिंग दिस पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। तो और फाइनली हमने जो, जैसे मैंने इनिशियली कहा कि इट्स अ लिमिटिंग केस, तो हमने इसको प्रूव किया कि इट इज़ बेसिकली अ फॉर्म ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बट n is very large. I am repeating the last sentence. So finally what we said was कि and rather proved as well कि जो Poisson distribution है that is a limiting case of binomial distribution, जिसके के हमने ये किया था कि binomial distribution का expression लिखा and we just manipulated it mathematically and we reached this end result जो कि हमने यहाँ पे लिखा है। So that was all about, दोबारा से बोल रहा हूँ, so that was all about discrete probability distribution जो special cases थे उनके। और अब उसके बाद हमने स्टार्ट किया था यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के केस में what we had के it was similar to the problem which we had in discrete case, but इसमें जो curve है that will be continuous और एक flat curve होगी which will be parallel to the horizontal axis which is usually the independent variable या random variable axis. Let's say this is x, so this is f of x. If we have a point A over here and a point B over here, or to make it a probability distribution, this area जो है that should be equal to 1. यानी area of this rectangle has to be 1. So if its length is या इसकी साइड जो है, एक साइड जो है वो b माइनस a है, इट्स द डिस्टेंस फ्रॉम b माइनस a, यानी ओरिजिन से इस पॉइंट का डिस्टेंस b है, इसका a है, तो इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी b माइनस a। तो इफ जो इसकी एक साइड है मे बी उसको हम लेंथ कह देते हैं, दैट इज इक्वल टू b माइनस a, तो इसकी जो हाइट या अदर साइड जो होगी दैट विल एक्चुअली बी इक्वल टू 1 over b minus a, so that both of these get multiplied and cancelled so that they yield the answer to be equal to 1. So this is basically what we said was the uniform distribution. यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसके लिए ऑब्वियसली हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन की क्लॉजेज हैं या प्रॉपर्टीज़ हैं कि एफ ऑफ एक्स जो है दैट हैज़ टू बी नॉन नेगेटिव एंड देन जो टोटल सम है ऑफ दोज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस विच इन कंटिन्यूस केस इज एक्चुअली इंटीग्रल, that has to be 1 as well. So since this interval is only this function is only non-zero between this a and b, तो जो integration होगी that will be only from b to a of f of x dx and that is equal to 1. और अगर इसको हम यूँ देखें भी कि what should be f of x, तो it should be actually it means के we get this b minus a. अगर हम यहाँ पे b minus a पुट करते हैं that would be a constant, उसका जो इंटीग्रल होगा that will be x और this will be cancelled.
So we will continue our discussion on this uniform distribution today, and we will move on to another distribution जो कि normal distribution कहलाती है. So just as a refresher, हमने अभी बात की कि the density function of the continuous uniform random variable x on the interval a b is f of x a b is equal to 1 over b minus a for x lying between a and b, and it's 0 elsewhere. The uniform distribution is also called rectangular distribution. We did solve a problem in the last class. Now let's see what is mean of a uniform distribution. Basically what we are going to do is we are going to prove that mean of the uniform distribution जो है that is a plus b divided by 2, which is logical के अगर हमारे पास ये एक distribution है, this is a and this is b, तो इसकी mean value जो है वो exactly in the half होनी चाहिए. But can we prove it? So let's try to prove it. The mean of a uniform distribution is a plus b divided by 2. Now f of x जो है that is equal to 1 over b minus a for a is less than or equal to x is less or equal to b, and it's 0 elsewhere. So mean या expected value जो है that is equal to, इंटीग्रल लिखने से पहले let's write it in this form. It is expected value of x. तो expected value जो है वो हम find करते हैं by this relationship and this is equal to and this is equal to integral from a to b x into 1 over b minus a dx. So this is equal to b minus a जो है वो तो एक constant value है, तो हम x को जब इंटीग्रेट करेंगे तो that will be x square divided by 2 evaluated between a and b. अब जब हम ये वैल्यूज प्लग इन करेंगे 1 ओवर b माइनस a इंटू दिस विल बी b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2. So if we further see it in this form that b minus a तो एज इट इज रहेगा. इस बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर को हम लिख सकते हैं बी प्लस ए इंटू बी माइनस ए डिवाइडेड बाय 2. ऑफ कोर्स वी हैव इट ओवर हियर. सो दिस कैंसल्ड विद दिस. इट मीन्स के म्यू जो है ऑफ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन इज b प्लस ए डिवाइडेड बाई 2, या इसको हम यूं भी कह सकते हैं कि म्यू इज इक्वल टू ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2. So this is what was the proof of the mean of a uniform distribution is actually the value which is exactly in the middle of those 2 points. Similarly, we can see what is the variance of a uniform distribution. Variance of a distribution जो है वो that is basically
इसका भी हम एक्चुअली प्रूव करेंगे कि इट इज सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू बी माइनस ए होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12. तो हम बेसिकली व्हाट विल वी डू इज के विल अगेन स्टार्ट विद द रिलेशनशिप जो सिग्मा स्क्वायर के लिए हम यूज करते हैं. This is what is the relationship that is used for to find the mean variance from the mean. तो इसमें mean का तो हमें पता है, we just evaluated. Expected value of x square जो है that will be equal to integral from minus infinity to plus infinity x square f of x dx. So यहाँ पे square था. So this will be equal to 1 over b minus a again, or integral from a to b of x square dx. I have just plugged in values. f of x की बजाय b minus a put किया है, और it is b minus a between a and b, and before a and after b these values are 0, so उनका इंटीग्रल लिखने की जरूरत नहीं है, वो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, as we did in the last proof. Okay, so this will be actually equal to 1 over b minus a multiplied by x cube divided by 3. So x cube divided by 3 is actually being evaluated at a, b. So this is equal to 1 over 3 into b minus a, and this is multiplied by b cube minus a cube. So this is equal to 1 over 3b minus a into b cube minus a cube जो होगा that will be equal to b minus a into b square plus ba plus a square. ये हमें from 9th grade or 10th grade we know these algebraic relations, and we can basically prove it. अगर prove करना हो तो हम इनको multiply करके देख सकते हैं. So this cancels this b minus a, तो जो हमारे पास रह जाएगा value that will be equal to b square plus ba plus a square divided by 3. Now if we plug in this value and that of mu की value थी a plus b divided by 2, तो ये values अगर हम इधर plug in करेंगे sigma square के लिए, तो sigma square जो है that will be equal to b square plus b into a plus a square divided by 3 plus a plus b whole squared divided by 2. So if we calculate this, so this will be equal to b square plus a plus ba plus a square, rather we had a negative sign over here, divided by 3, इसका भी स्क्वायर होगा, माइनस
इसको हम उसी फॉर्म में लिख लेते हैं, बी स्क्वायर प्लस 2ba प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। अब अगर हम इसका एलसीएम लें, वी विल हैव 12 ओवर हियर और 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, वी विल हैव 4b स्क्वायर प्लस 4ba प्लस 4a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 6 ba प्लस 3a स्क्वायर। तो इसको हम यूं लिख सकते हैं कि दिस इज 4b स्क्वायर प्लस 4 इंटू ba प्लस 4 इंटू a स्क्वायर, दिस इज actually 4 into a square, 4 into a square minus 3b square minus 6ba minus 3a square divided by 12, and this will be equal to b square minus ये 4 में से 1 हमने सब्ट्रैक्ट किया तो 1 रह गया। इसी तरह से दिस प्लस 4ba माइनस 6ba, तो दिस विल बी माइनस 2ba प्लस 4 माइनस 3 विल बी 1a स्क्वायर, एंड दिस इज डिवाइडेड बाई 12। और इसको जब हम इसको हमें पता है कि दिस इज b माइनस a होल स्क्वायर, so this will be equal to b minus a whole squared divided by 12, which is the relationship we had to prove. हमने ये रिलेशनशिप जो है वो प्रूव कर दी। So sometimes it appears at the beginning कि हम it's something जो कि इसका रिलेशनशिप ही नहीं बन रहा, 12 कहाँ से आ गया, स्क्वायर कैसे बनेगा। We think कि ये शायद वैल्यू गलत लिखी हुई है, प्रूफ ठीक नहीं होगा या मुझसे नहीं होगा, बट इट्स जस्ट मैटर ऑफ सिटिंग डाउन एंड हैविंग अ पेन एंड पेपर, थोड़ी सी करेज, एंड यू स्टार्ट इट एंड इट गेट्स डन। सो दैट्स बेसिकली ऑल जो कि हमें यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशंस के हद तक करना था, कि हमने इसका मीन कैलकुलेट किया विच इज़ a प्लस बी बाई 2, और इसकी वेरिएंस कैलकुलेट की विच इज़ b माइनस a होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12। और अगर हमने इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करनी हो विच इज़ एक्चुअली सिग्मा, तो जो सिग्मा है दैट विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा स्क्वायर। तो इसका अगर हम स्क्वायर रूट लेंगे तो दिस विल बी इक्वल टू b माइनस a डिवाइडेड बाई 2 square root of 3. So this will basically give us the standard deviation of a uniform distribution. So let's move on to our next continuous distribution, which is normal distribution. Normal distribution को basically हम define करते हैं a continuous random variable x having a bell-shaped distribution is called normal random variable, यानी बेल शेप से मुराद हमारी is like this, यानी जैसे हमने उल्टी बेल रखी हो तो इसकी जो शेप है अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और नॉर्मल कर्व इज लाइक दिस। इसको हम डिनोट करते हैं बाय दिस n x mu and sigma. The density of the normal random variable x with the mean mu and variance sigma square is given by 1 over 2 pi square root into sigma. Sigma जो है वो square root में नहीं है. This is very important
to remember. E to the minus 1 over 2 sigma square x minus mu whole square for minus infinity to infinity, यानी ये इस तरफ नेगेटिव इन्फिनिटी है, इस तरफ पॉजिटिव इन्फिनिटी है, और ये कर्व जो है ये इस तरह से इट्स गोइंग एसिम्प्टोटिकली इन बोथ द डायरेक्शंस, यानी इन्फिनिटी पे जाके ये एक्स एक्सिस को टच करेगी। यहाँ पे दूसरी जो चीज़ देखने वाली है कि जो एक्सपोनेंशियल के ऊपर जो पावर वाली टर्म है उसको समटाइम्स यूं भी लिखा होता है x माइनस म्यू ओवर सिग्मा होल स्क्वायर्ड। इसमें भी इम्पॉर्टेंट बात यह है देखने वाली कि ये जो 2 है दिस इज नॉट स्क्वायर्ड, तो इसको भी कभी गलती से भी उसके अंदर नहीं लिखना चाहिए। सो दिस इज अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको कि हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। इसका एक और नाम जो है दैट इज गॉसियन distribution as well, against mathematician and scientist Gauss, जिसने के इसको डिस्कवर किया। गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन जो है या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है या बेल कर्व भी हम इसको कहते हैं, बेल शेप्ड कर्व, या दिस इज समथिंग जो कि बहुत से नेचुरल फिनोमिना को रिप्रेजेंट करती है। फॉर एग्जाम्पल, हम अगर कोई रैंडमली पिक्ड डाटा लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि फॉर एनी रैंडमली पिक्ड डाटा, फॉर एग्जाम्पल हम अखबार में इश्तिहार देते हैं कि वी हैव एडमिशन ओपन फॉर BCS फॉर एग्जाम्पल, एंड पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री अप्लाई फॉर दैट, और 30, 50, 100 जितने भी बच्चे हैं दे आर पिक्ड इन एनी कोर्स। अगर हम उनको देखेंगे तो उनकी जो मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन होगी दैट विल बी लाइक अ बेल कर्व। अब ये बेल कर्व जो है ये फ्लैट भी हो सकती है और ये शार्प भी हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि जो हाउ क्लोज दे आर। लाइक अगर हम कहें कि द मेरिट इज़ वेरी टफ, हम सिर्फ ऐसे बच्चे लेते हैं जो 95% से 100% के दरमियान में हैं, तो इसकी जो बेल कर्व होगी दैट विल बी वेरी नैरो। बट अगर हम कहते हैं कि जी नहीं, हम तो 50% से 100% तक कोई भी लेते हैं, तो द बेल कर्व मे लुक लाइक दिस कर्व और दिस कर्व, यानी जो थोड़ी सी ज्यादा वाइड होगी और फ्लैट होगी। और अगर हम कहते हैं कि हम लेंगे तो विद इन दिस रेंज, बट वी विल मेक अ मेरिट ऑफ इट, बहुत से लोग अप्लाई करेंगे एंड वी हैव टू पिक ओनली 50 स्टूडेंट्स में भी, तो उसमें चांस ये है कि वी गेट टू अ सिचुएशन विच इज लाइक दिस कि इट इज बेल शेप्ड कर्व। बट अगर हम फॉर एग्जांपल पूरे पाकिस्तान की सारी यूनिवर्सिटीज़ के BCS के स्टूडेंट्स का डाटा इकट्ठा करने की कोशिश करें जो फर्स्ट सेमेस्टर में इस दफ़ा गए हैं, तो दैट विल बी अ कर्व जो कि मॉडरेट किस्म की होगी। तो उसका स्प्रेड जो होगा वो बहुत ज़्यादा भी नहीं होगा, बहुत तंग भी नहीं होगा, क्योंकि अब हमारा जो सैम्पलिंग एरिया है दैट इज़ वेरी बिग। तो जितना हम वो सैंपल अपना बड़ा करते जाते हैं उतना हम आइडियल जो बेल शेप कर्व है उसके पास पहुंचते जाते हैं। सो जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है इसके अंदर और भी हमें बहुत सी क्वालिटीज़ कह लें आप, या इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं दे आर हेल लॉट ऑफ देम। तो इनको हम लेट्स से कि हाउ डू वी बेसिकली गो बाय देम, कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, इसको हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, किस तरह से ये बेसिकली देखा जाता है। सबसे पहली जो चीज़ है इसकी प्रॉपर्टीज में, द मोड विच इज द पॉइंट ऑन हॉरिजॉन्टल एक्सिस
where the curve is maximum occurs at x is equal to mu. यानी ये जो मैक्सिमम पॉइंट है ये x इज इक्वल टू म्यू पे है, यानी ये जो वैल्यू है इसकी यहाँ पे म्यू है। ठीक है, ये अभी हम इसी टॉपिक के अंदर हम ये प्रूव भी करेंगे कि जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू है दैट लाइज एट इट्स मीन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की। द सेकेंड थिंग जो है वो ये है कि द कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट वर्टिकल एक्सिस थ्रू द मीन, यानी जो अगर हम यहां पे एक एक्सिस बना दें तो इफ इट इज लाइक अ वर्टिकल एक्सिस, तो जो बेल कर्व है वो इसके अबाउट सिमेट्रिक है, यानी हाफ ऑफ द एरिया जो है वो इस तरफ है और हाफ ऑफ द एरिया जो है वो इस तरफ है। और जो शेप इस साइड पे है वही शेप जो है वो अगर हम इस साइड पे इसको एक्सटेंड करें तो होगी, यानी जितना एरिया हमने इसके अंदर इस रीजन के अंदर देखा है उतना ही इस रीजन में आएगा। तो दिस इज समथिंग जो कि अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इट इज बेसिकली सिमेट्रिक अबाउट मीन। तो उसका हमें बेसिकली फायदा बहुत ज्यादा है कि वी ओनली नीड टू नो अबाउट 1/2 ऑफ द कर्व, और अगर हमें सिर्फ उसके हाफ का पता है तो हम बाकी की जो कर्व है उसके बारे में नताइज निकाल सकते हैं कि वो कैसी होगी। अगर हमें ये साइड पता है तो हम इस साइड की वैल्यूज भी कैलकुलेट कर सकेंगे, और अगर ये साइड पता है तो इस साइड की वैल्यूज भी कैलकुलेट कर सकेंगे। तो ये हमें फायदा इस चीज से मिला कि दिस कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट दिस पॉइंट। द कर्व हैज इट्स पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन एट x इज इक्वल टू म्यू प्लस माइनस सिग्मा, is concave downward if x is lying between mu minus sigma and mu plus sigma and concave upwards otherwise। यानी सबसे पहले हम जरा अपनी मेमोरी को रिफ्रेश करते हैं कि व्हाट इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। आपने कैलकुलस के अंदर यू वुड हैव स्टडीड कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता क्या है। एक्चुअली there are many sort of curves, for example ये तो कर्व है, सर्कल है, we have this type of curves, we have this type of curves, we have this type of curves। तो कर्व्स जो हैं वो किसी भी शेप की हो सकती हैं। अब अगर हम एक जो जनरल सी डेफिनेशन है, हम टेंजेंट जो है वो किसी भी पॉइंट पे ड्रा कर सकते हैं। टेंजेंट का हमें पता है कि इट जस्ट टचेज a point of that curve। It is a straight line। टेंजेंट जो है वो स्ट्रेट लाइन होता है और किसी एक पॉइंट को टच करता हुआ गुजर जाता है। नाउ इफ वी हैव अ कर्व ऑफ दिस शेप, इसमें अगर मैं देखूं इस पॉइंट पे टेंजेंट बनाने की कोशिश करूं तो इट विल बी लाइक दिस, और अगर मैं इस पॉइंट पे देखता हूं तो दिस टेंजेंट विल बी समथिंग लाइक this। It's basically let's say कि ये टच कर रहा है, थोड़ा सा नजर आना चाहिए। So this is the tangent to on this curve। अब अगर इस पॉइंट को, इस टेंजेंट को मैं मूव करूं तो इस साइड पे बेसिकली ये जो है वो ऊपर ही है कर्व के, यानी कर्व जो है वो इस टेंजेंट से नीचे है। बट अगर मैं यहाँ पे ये मूव करके बनाता हूँ तो दिस इज बेसिकली सच दैट कि ये जो टेंजेंट है दैट इज बिलो द कर्व। इसका मतलब है क्योंकि कर्व कंटिन्यूअस है तो इसका मतलब है कि देयर विल बी अ पॉइंट वेयर दिस टेंजेंट
should cross the curve at that point. तो क्या होता जाएगा, हम यहाँ से अगर मूव करते जाएंगे तो इस किसी पॉइंट पे जब हम टेंजेंट ड्रा करने की कोशिश करेंगे तो दैट विल बी समथिंग जो कि इसमें से गुजर जाएगा। ऐसे पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं, यानी ऐसा पॉइंट जिसके ऊपर के अगर हम टेंजेंट ड्रा करने की कोशिश करें तो वो जो टेंजेंट है वो उसके एक पॉइंट को सिर्फ टच करता गुजरने की बजाय उस पॉइंट के अंदर से गुजर के कर्व की दूसरी साइड पे चला जाएगा। तो दैट इज व्हाट वी मीन के जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है ऑफ दिस कर्व दैट लाइज ओवर हियर, और यहाँ पे अगर हम टेंजेंट ड्रा करने की कोशिश करेंगे तो वो इस तरह का होगा, और ये पॉइंट जो है दैट इज बेसिकली इक्वल टू एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू म्यू प्लस सिग्मा या एक्स इज इक्वल टू म्यू माइनस सिग्मा। So this is where the point of inflection lies on the curve. So more properties. Normal curve approaches the horizontal axis asymptotically as we proceed in either direction away from the mean. यानी मीन यहाँ पे है, दिस इज x इज इक्वल टू म्यू। अब चाहे हम इस डायरेक्शन में मूव करें इन पॉजिटिव x डायरेक्शन और इन नेगेटिव x डायरेक्शन, जो बिहेवियर ऑफ दिस कर्व है दैट विल बी कि ये इसके पैरेलल होता जाएगा, यानी असिम्प्टोटिक बिहेवियर ये होगा। असिम्प्टोट, इफ यू रिमेंबर अगेन फ्रॉम योर नॉलेज ऑफ कैलकुलस, कि असिम्प्टोट हम कहते हैं asymptote is tangent at infinity, यानी इन्फिनिटी पे जाके जो टेंजेंट होगा। तो इसका मतलब है कि ये जो एक्स एक्सिस है दैट विल बी टेंजेंट टू दिस कर्व एट इन्फिनिटी, यानी इन्फिनिटी पे जाके ये दोनों चीजें मिल जाएंगी। सो जो हम एक्स एक्सिस के करीब आते जाते हैं, फॉर एग्जांपल आफ्टर दिस एरिया, तो ये ज्यादा फ्लैट होती जाएगी कर्व, और इट विल गो लाइक टू पैरेलल लाइंस टिल इन्फिनिटी। तो ये चाहे हम पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहे हैं, इस साइड पे जा रहे हैं, तो हमें प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाना है, इस साइड पे जाना है तो वी आर गोइंग टुवर्ड्स नेगेटिव इन्फिनिटी। बट आइदर वे ये जो इन्फिनिटी है, ये जो बिहेवियर है दैट विल रिमेन असिम्प्टोटिक। एंड फाइनली द लास्ट प्रॉपर्टी जो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं कि द टोटल एरिया अंडर द कर्व एंड अबव हॉरिजॉन्टल एक्सिस इज इक्वल टू 1। यानी अगर हमारे पास कर्व है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की, हम उसको उसका टोटल एरिया जो होगा दैट विल बी इक्वल टू 1, क्योंकि हमें पता है कि या इसको हम अगर एफ ऑफ एक्स कह दें तो एफ ऑफ एक्स डी एक्स जो है दैट हैज टू बी एक्चुअली इक्वल टू 1, ओनली देन वी कैन कॉल इट अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अगर अदरवाइज हम इसको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तो कह ही नहीं सकते। तो दिस विल बी द प्रॉपर्टी ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन, और ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है तभी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनेगी जब इसकी जो इट फुलफिल्स द एक्सियम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, यानी प्रोबेबिलिटी शुड बी नॉन नेगेटिव एंड प्रोबेबिलिटी जो है एंड द टोटल एरिया जो है दैट शुड बी 1। अब अगर हमें किसी भी एरिया के दरमियान बेसिकली इफ वी हैव टू फाइंड कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ x lying between x1 and x2, यानी if we have to find के what is the probability of this, तो हमें बेसिकली x1 से x, तो हमें बेसिकली x1 से x2 तक जो n
ऑफ एक्स म्यू सिग्मा जो है डी एक्स, इसको इवेल्युएट करना पड़ेगा. अब basically again we are not going into those details in this class. We will do that कि हम इसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे करते हैं in next class basically. बट अभी के लिए हम यहाँ पे सिर्फ इतना इसका जिक्र करेंगे कि यानी ये एरिया फाइंड करने के लिए वी विल अगेन यूज टेबल्स. वो कैसे करेंगे दैट वी विल सी इन आवर नेक्स्ट क्लास. Now we see what is mean of the normal distribution. We have to see the mean of the normal distribution क्या है. We will just find the mean जैसे कि हम expected value से find करते हैं, यानी mu जो है that is equal to expected value of x. It means कि this should be equal to x f of x dx integral from minus infinity to plus infinity. Now here f of x जो है that is equal to 1 over 2 pi square root into sigma and e to the negative of 1 by 2 x minus mu divided by sigma whole squared. यानी मीन ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है दैट विल बी कैलकुलेटेड बाई एक्स एफ ऑफ एक्स जो है उसको हमने ज़रा थोड़ा एलेबोरेट करके यहाँ पे दोबारा लिख लिया. तो जो मीन है उसके लिए फिर ज़ाहिर एक्सप्रेशन हमारा जो होगा दैट विल बी इक्वल टू एक्स इंटू 1 over 2 pi square root sigma e to the minus 1 by 2 x minus mu over sigma squared dx और ये है इंटेग्रल फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी. अब हम कहते हैं कि बिफोर वी प्रोसीड फर्दर हम ज़रा जो कांस्टेंट टर्म है उसको इंटीग्रल से बाहर लिख लें ताकि हमारा जो एक्सप्रेशन है दैट लुक्स अ लिटिल बिट सिंपल. इट्स एक्स ई टू द माइनस 1 by 2 एक्स माइनस म्यू डिवाइडेड बाई सिग्मा dx. Now let's set x minus mu को डिवाइडेड बाई सिग्मा को z के बराबर सेट करते हैं. यानी ये जो ऊपर फैक्टर हमने यहाँ पे लिखा है इसको हम z के बराबर सेट कर देते हैं. जब हमने इसको z के बराबर सेट करना है तो हमें ये भी देखना है कि जो dx है वो क्या होगा. तो इसका मतलब है कि जो dx है डिवाइडेड बाई सिग्मा इज इक्वल टू dz. और जो लिमिट्स हैं एट x इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी z जो होगा दैट विल आल्सो बी इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी. एंड एट इस रिलेशनशिप से हम देख रहे हैं कि यानी अगर हम इसके अंदर x की बजाय माइनस इन्फिनिटी प्लग इन कर दें तो z जो है दैट विल रिमेन नेगेटिव इन्फिनिटी. और इसी तरह से यहाँ पे अगर हम प्लस इन्फिनिटी भी पुट कर दें तो इट विल रिमेन दिस फंक्शन जो है दिस ये अगेन दिस विल बी प्लस इन्फिनिटी. तो एट x इज इक्वल टू इन्फिनिटी z will also be equal to. So let's prove it. ये values हम इसमें plug in करते हैं. तो we will have 1 over 2 pi square root. यानी इससे हमें ये पता चलता है कि जो dx है that will be equal to sigma
z। यहाँ पे सिग्मा की वैल्यू आ जाएगी एंड देन वी विल हैव दिस माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। x की बजाय हमने यहाँ पे z लिखना है, तो x की वैल्यू अगर हम यहाँ से लिखने की कोशिश करेंगे तो दिस थिंग विल टेल अस कि जो x है दैट इज इक्वल टू सिग्मा z प्लस म्यू, यानी ये म्यू को सिग्मा को यहाँ से मल्टीप्लाई कर दें z के साथ और ये म्यू जो है वो इस तरफ आके x की वैल्यू बता देगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सिग्मा z प्लस म्यू, यानी ये हमने x की बजाय लिखा और ये वैल्यू e टू द -1/2 z स्क्वायर और यहाँ पे हम लिखेंगे सिग्मा dz। तो दिस सिग्मा जो है दैट विल बी कैंसल्ड विद दिस सिग्मा और हमारे पास जो एक्सप्रेशंस बच जाएंगे दे विल बी इक्वल टू 1/2 पाई स्क्वायर रूट, तो हम यूं ही लिख लेंगे और दिस विल बी इक्वल टू सिग्मा z e टू द नेगेटिव हाफ z स्क्वायर dz प्लस म्यू e टू द -1/2 z स्क्वायर। This is dz over here and this is being integrated from minus infinity to plus infinity. तो अब अगर हम ये देखें कि ये जो वैल्यू बेसिकली z into e to the minus z square divided by 2 dz integrated from minus infinity to plus infinity. From tables of integration you can see कि आप डेफिनेट इंटीग्रल्स को अगर देखें टेबल ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स या इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स, तो दिस जो वैल्यू है आपको ये 0 मिलेगी और इसी तरह से माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी e टू द माइनस z स्क्वायर ओवर 2 dz जो है दैट इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट। तो इफ वी प्लग इन दीज वैल्यूज इन दिस इक्वेशन तो हमारे पास जो वैल्यू बच रहेगी दैट विल बी 1/2 पाई स्क्वायर रूट into this term is actually 0 because of this 0 into sigma। अगर इसके साथ मल्टीप्लाई हो भी जाता है तो it doesn't make any difference। तो यहाँ पे हमारे पास एक तो ये म्यू बचेगा into 2 पाई का स्क्वायर रूट बचेगा which is equal to 1/2 पाई into म्यू into 2 पाई और ये कैंसल होके वी विल फाइंड कि जो मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन है दैट इज म्यू। सो दिस इज बेसिकली व्हाट वी कैन से कि मीन ऑफ अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है दैट इज म्यू, और उसको प्रूव करने का हमारे पास ये तरीका है। नाउ लेट्स सी कि व्हाट इज द variance of a normal distribution. Variance of normal distribution जो है वो similarly that is sigma square which is equal to expected value of x square minus
ऑब्वियसली म्यू स्क्वायर, या हम इसको एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स माइनस म्यू होल स्क्वायर भी बेसिकली इस तरीके से भी उसको कैलकुलेट हम कर लेते हैं. नाउ अगेन आवर एफ ऑफ एक्स विल रिमेन सेम, यानी 1 over 2 pi square root into sigma integral from negative infinity to plus infinity e to the minus 1 by 2 x minus mu divided by sigma whole square dx. तो f of x तो हमारा बेसिकली f of x तो हमारे पास ये वैल्यू है. अब अगेन टू फाइंड दिस वेरिएंस यानी एक्सपेक्टेड वैल्यू को हम क्या करेंगे कि दिस इज सिग्मा स्क्वायर और दैट विल बी इक्वल टू, एक्चुअली आई विल यूज अ लिटिल बिट ऑफ शॉर्टकट कि इसको मैंने पहले से ही बाहर लिख लिया इंटीग्रल से, एंड इंटीग्रल ऑफ x माइनस म्यू होल स्क्वायर और उसके बाद f of x की बजाय इट विल बी दिस टर्म e टू दी नेगेटिव हाफ x माइनस म्यू ओवर सिग्मा होल स्क्वायर dx. अगेन वी विल यूज द सेम जो सब्स्टिट्यूशन थी कि जो x है x माइनस म्यू ओवर सिग्मा है, इसको हम z के बराबर अस्यूम करते हैं. दिस इम्प्लाइज कि dz जो है वो दैट इज इक्वल टू x dx ओवर सिग्मा, या dx जो है दैट इज इक्वल टू सिग्मा टाइम्स dz. और लिमिट्स जो हैं ऑब्वियसली सिंस दिस इज जो डायरेक्ट रिलेशनशिप है, कुछ चीज़ प्लस माइनस हो रही है उसमें से, तो जो लिमिट्स हैं चूंकि ये इन्फिनिटी हैं दे विल नॉट चेंज. तो एट एक्स इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी जेड माइनस इन्फिनिटी ही रहेगा, और एट एक्स इज इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी जेड जो है वो प्लस इन्फिनिटी ही रहेगा. सो दिस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ this x minus mu square जो है for this function that will actually be equal to, हम अगर इसको यूं देखें, now if we see this expected value तो हम इसको यूं लिख सकते हैं कि this is x minus mu over sigma whole squared, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं sigma divided by 2 pi square root from minus infinity to plus infinity e to the negative half x minus mu over sigma dx. तो जब हम ये वैल्यूज इसमें प्लग इन करेंगे, हमने बेसिकली किया ये है कि इस सिग्मा को सिग्मा स्क्वायर कर दिया और इसके अंदर ले आए यहाँ पे, और चूंकि दैट इज इम्बैलेंसिंग दिस इक्वेशन तो हम उस एक सिग्मा से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं. यानी हमने इसेंशियली वी हैव मल्टीप्लाइड एंड डिवाइडेड बाय सिग्मा टू दिस इक्वेशन, और उसको हमने इस फॉर्म में लिख लिया. अब दिस समथिंग इज z, तो हमारे पास ये जो वैल्यू बचेगी दैट विल बी इक्वल सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 pi and integral from minus infinity to plus infinity. अब ये whole thing जो है that is z, यहाँ पे it will be a z square, and this is be equal to e to the minus 1 by 2 into z square, और dx की बजाय we will write a sigma dz. So this will be equal to sigma square divided by 2 pi square root minus infinity to plus infinity z square
e to the minus z square divided by 2 dz. Now this part will again be equal to 2 pi square root. So ये यानी ये जो होल इंटीग्रल है that will again be equal to 2 pi square root. तो जो वैल्यू होगी यानी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर जो है दैट इज सिग्मा स्क्वायर. यानी ये जो हमने इसमें वैल्यूज लिखी हुई हैं सिग्मा, ऑलरेडी वी आर हैव यूज्ड दैट नोटेशन. ये जो सिग्मा है दैट इज बेसिकली इट्स वेरिएंस. सिग्मा इज एक्चुअली इट्स स्टैंडर्ड डेविएशन. वेरिएंस जो होगी वो सिग्मा स्क्वायर होगी. तो दिस इज अगेन ये हमें टेबल से वैल्यूज इवेल्युएट करना पड़ती हैं. स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स जो हैं उनके टेबल्स अगर आप कंसल्ट करेंगे तो यू विल फाइंड कि दिस वैल्यू इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट, या इसके साथ जो 1/2 पाई का फैक्टर है तो इट विल गिव अस अ वैल्यू ऑफ 1. सो दिस इज बेसिकली वेरिएंस ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. सो दैट्स बेसिकली ऑल टुडे. टुडे मेनली व्हाट वी डिड इज के हमने यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन को कंटिन्यू किया. यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वी कैलकुलेटेड इट्स मीन एंड वेरिएंस. सिंपली x से उसको मल्टीप्लाई करके हमने इंटीग्रेट किया एफ ऑफ एक्स को और वैल्यूज प्लग इन की, मैनिपुलेट किया, वी गॉट a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2. सिमिलरली फॉर द सेकंड केस हमने उसको ऐड किया, एक्स स्क्वायर की एक्सपेक्टेड वैल्यू ली और उसमें से हमने सब्ट्रैक्ट किया म्यू स्क्वायर को एंड वी सिंप्लीफाइड और हमें b माइनस ए होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12 उसका आंसर मिल गया. एंड देन वी शिफ्टेड टू द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का हमने एक्सप्रेशन देखा विच वाज बेसिकली इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन. और इसके अलावा हमने ये देखा कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की जनरल प्रॉपर्टीज क्या हैं. एक तो ये था कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है अगर इसको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे तो ये नॉन नेगेटिव होगी और इसकी जो इंटीग्रेशन है फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी दैट शुड बी 1. इसके अलावा इसका जो दिस कर्व है दिस इज सिमेट्रिक अबाउट एन एक्सिस which is equal to x is equal to mu, यानी इस एक्सिस के अबाउट ये सिमेट्रिक है. अब अगर ये इस तरह से सिमेट्रिक है तो उसका हमें बेनिफिट भी होगा जो कि हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे. प्लस हमने इसमें देखा कि इसका जो बिहेवियर है दैट इज असिम्प्टोटिक. प्लस माइनस इन्फिनिटी पे इट गोज टू असिम्प्टोटिकली 0, यानी एक्स एक्सिस को ये टच करना शुरू कर देती है एट इन्फिनिटी. एंड वन थिंग जो हमने और देखी थी कि इट हैज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एट एक्स प्लस सिग्मा और एक्स माइनस सिग्मा. एक्स जो है वो म्यू है बेसिकली यहाँ पे, यानी म्यू प्लस सिग्मा पे जाएं या म्यू माइनस सिग्मा पे जाएं तो कर्व जो है दैट विल हैव अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन. पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ऐसा पॉइंट होता है जिससे कि पहले कर्व जो है अगर वो डाउनवर्ड है तो डाउनवर्ड उसके शेप है यानी कनकेव है तो वो कन्वेक्स हो जाएगी उसके बाद और वाइस वर्सा. तो दिस इज व्हाट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इज, ये हमने देखा. उसके बाद वी फाउंड आउट के व्हाट इज मीन ऑफ अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. सिंपली हमने एक्सपेक्टेड वैल्यू कैलकुलेट की एंड देन वी फाउंड कि व्हाट इज वेरिएंस ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. उसमें भी हमने उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू कैलकुलेट की ऑफ एक्स माइनस म्यू होल स्क्वायर्ड की. एक्स माइनस म्यू जो एक्स जो था दैट वाज द वेरिएबल, रैंडम वेरिएबल. म्यू जो है दैट वाज टर्न्ड आउट टू बी द मीन और वेरिएंस जो थी दैट वाज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर.
So in next class, basically we will continue our discussion on this normal distribution, and we will see कि हम normal distribution की मदद से probabilities कैसे calculate करते हैं, और इसके अलावा जो इसकी हम एक और हमने proof करना है, which tells basically about के जो इसकी peak value है या maxima है that lies at its mean. Or we will continue our discussion on this basically normal distribution. So until then, it's Allah Hafiz and goodbye.